and I'm a professor at my computer classes. My computer classes name is Computer Guru Academy, which is situated in Bhayandar West. So this video I have been making for the last minute learners who always tend to learn at the last time, at the last moment. And this video will be helpful for all those who don't know how to work with Tally ERP9, how do you write steps with Tally ERP9, and how do you perform the reports of Tally ERP9. Okay, so let us start with this video having this computerized accounting with GST, that is Tally ERP9. Your SOP number 1 says Mr. Ravinder Kumar, who is the owner of the company, have started the business by the name as MS Bitwise Trading Company. So the first step will be, this particular SOP is in the on the page number 125 of your textbook. You can see the SOP number 1 of computerized accounting with GST. So first step will be, you will be starting with your Tally ERP9. You will be having the icon at your desktop, or else you can go to search bar and type Tally ERP9, and you will be getting this thing. Okay. After this, once you're opening this company, you have to work in educational mode. You have to click here and press OK. Okay, you'll be having a company which is opened already, so you have to shut this company. For this process, we will be pressing alt plus F3 key into your keyboard, and then you are going to go to shut company, enter, and then enter. Okay, now you don't have any kind of companies here. Okay, so next step will be, you will be creating your company. So you'll go to create company and press enter key. You will be getting all the details that you have to fill about a company. So we go to this page and we see the details. First detail is company name. The company's name is MS Bitwise Trading Company. So we'll type there. Okay. The mailing name and your company name will be the same. There will be no difference. Okay. Then we go to address part. And here in the address part, you have this address, that is 102 MG Road, Bhavna Nagar, Latur 413512. 102 M.G. Bhavna Nagar, Latur. State is Maharashtra, and the pin code, you have also given the pin code, that is 413512. Okay, you don't have such details like phone number, mobile number, fax number. You don't have these details, right? So you will not fill these details right now. Enter, enter, enter. You have email ID, right? So you will see you will type that email ID there as well. That is info@bitwise.com. Okay, then you also have website, and you will be looking at the website name www.bitwisetrading.com. Press enter key. The financial year will begin from where? From 2019, as it is given here, and is also given in the this part. Okay, so 1-4-2019. Similarly, books beginning from will also be the same date. Enter. Okay. And save. So the company has been created successfully. You will see your company's name on the left hand side here. The period of the company is here, and this is the current date. So in this company, we don't have anything called as GST. We don't have anything called as inventory. So what we'll do is, we'll press F11 company features, and we'll go to accounting features, and here maintain accounts will be yes, and then control A. Okay, so we are done with this part, that is creating company and the giving company details. Okay, so next part will be to create ledgers. Okay, until unless we create ledgers, we cannot pass the entries, right? So for this thing, you have to first create ledgers. Okay, so first entry you can see, it is Mr. Ravindra Kumar started business with cash. So here you're having two ledgers. One is Mr. Ravindra Kumar and one is Mr. Ravindra Kumar and one is cash. Okay. So रविंद्र कुमार का यहाँ पे लेजर बनेगा, बट कैश का लेजर नहीं बनेगा. बट कैश का लेजर यहाँ पे नहीं बनेगा. ठीक है. So we have here two ledgers. One is Mr. Ravindra Kumar and one is cash. Okay. So whenever you are opening an account into Tally, you already have one ledger, that is cash. You can see here you have the ledger of cash which is already prepared. So we have to create only one ledger, that is Mr. Ravindra Kumar. Okay. So for creating a ledger, we'll go to Gateway of Tally.
This is your gateway of tally screen. Okay. From this we'll go to accounts info. Enter. Then from there we'll go to ledgers. Enter. From there we go to create. Okay. So the steps will be gateway of tally, accounts info, ledger, create. So name of the ledger will be Mr. Ravindra Kumar. Under group will be capital account because Ravindra Kumar is investing in his own company. So the amount whatever it will be into capital account. Okay. And then if you have the details of address and all, you'll enter the details of address and all, but you don't have the details of address, you will just press enter key. Okay. Until you get the screen of accept. So you will accept the screen and the ledger will be created. Okay. After this, the next entry, you are going to have two ledgers here also, purchased goods and Sharda Steel. Okay. So you are purchasing goods from Sharda Steels on credit. Okay. So we go to Tally ERP9 again. Here you will be having purchase goods under purchase account. Why? Because this will reflect only your purchase account. That is why. Okay. Type of ledger not applicable. Enter, 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 save. Okay. Then you'll be creating one more ledger called as Sharda Steels. Okay, so Sharda Steel is the party from whom you are going to purchase. So the parties from whom you are going to purchase, जिससे आप खरीदते हो माल, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर. ठीक है. तो यहाँ पे अंडर ग्रुप में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स. Okay. Maintain bill by bill, no. And if you have the details of address and all, you will fill it. But because you don't have the details, you will just press enter key and save the ledger. Okay. Next will be paid salary to staff. So here you will be creating a ledger only of salary account. So here you will be having ledger under indirect expenses. Okay. So because salary is an expense of your office, it will be coming under indirect expense. If it is an expense of your product or goods, then it will be under direct expenses. Okay. Because it is an expense of your office, so it will be into indirect expenses. Enter save. Okay. Next will be cash deposited into Bank of India. So you have the ledger of cash already. You're going to create a ledger only of Bank of India. Okay. So here, le- so here, ledger name will be Bank of India. Under what you are, Bank of India is a account where you are going to have your own account. That means what? जहाँ पे आपका खुद का बैंक अकाउंट होगा ना वो है चीज़ ये. So you have two kind of things. If you have learned about accounts, you have cash in hand and you have cash at bank. So this is cash at bank. For cash at bank, you will be going into bank accounts ledger group. Sorry. Okay. Now in case if you have these details, you are going to fill it. अगर आपके पास ये details नहीं है तो आप सीधा इसको enter enter दबाओगे और save कर दोगे. Okay. Next is sold goods to Rakesh Enterprise. Here also you will be creating two ledgers. One is sold goods and one is Rakesh Enterprise. So here we come here. Name of the ledger will be sales account. Under it will be coming sales account. Okay. Type of ledger not applicable. Enter, enter, save. Done. And then you are going to create one more ledger called as Rakesh Enterprise. Now you are going to sales the goods, right? So you are going to get the money. So it is a डेटर फॉर यू. दैट मीन्स जिस पार्टी को भी आप माल बेचते हो ना वो आपका डेटर होता है और जिससे आप खरीदते हो आपका क्रेडिटर होता है. ये आप चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या आएगा सन्ड्री डेटर्स. ठीक है. इफ यू हैव एड्रेस डिटेल्स यू विल फिल द एड्रेस डिटेल्स बट इफ यू डोंट हैव द डिटेल्स यू विल जस्ट प्रेस एंटर की एंड सेव इट. ओके. लेजर्स बन गए हमारे यहाँ तक. नेक्स्ट लेजर विल बी परचेज मशीनरी. ना मशीनरी इज योर असेट, राइट. असेट्स आपके होते हैं दो प्रकार के. एक होता है फिक्स असेट्स और एक होता है करंट असेट. ओके. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिक्स असेट एंड करंट असेट जो आपको अकाउंट्स में ऑलरेडी सिखाया गया रहेगा. ओके. सो यहाँ पे आएगा मशीनरी अकाउंट. अंडर इट विल बी कमिंग दैट इज फिक्स असेट. ओके. नाउ यू डोंट हैव दिस डिटेल्स तो यहाँ पे हम खाली क्या करेंगे एंटर एंटर करके सेव कर देंगे. ओके. नेक्स्ट इज यू आर गोइंग टू रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया. तो बैंक ऑफ इंडिया का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है तो हमें किसका लेजर बनाना है सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव्ड का. तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट. अंडर इट विल बी इनडायरेक्ट इनकम.
बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर यू एंड इट इज नॉट अ डायरेक्ट इनकम। वो आपको गुड्स के लग के आपके सर्विस को लग के इनकम नहीं है इसके लिए। एंटर एंड सेव। ओके, सो ये वी हैव क्रिएटेड ऑल द लेजर्स। अभी आपका स्टेप नंबर 1 वापस आपको रिपीट करता हूँ। स्टेप नंबर विल बी क्रिएटिंग अ कंपनी। स्टेप नंबर 2 विल बी अलाउिंग द ऑप्शंस विच इज ऑलरेडी देयर, मतलब कि आपको जो ऑप्शंस की जरूरत है उसको एक्टिवेट करोगे, जो ऑप्शंस की जरूरत नहीं उसको डीएक्टिवेट कर दोगे आप। दैट इज कमिंग अंडर F11 कंपनी फीचर्स। स्टेप नंबर 3 विल बी क्रिएटिंग लेजर्स अंडर अप्रोप्रिएट ग्रुप। सो आप जब भी अपने बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो ना, परफॉर्म कर रहे हो ना, मेक श्योर दैट आप जो जो स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हो ना, वो स्टेप्स का आप वहाँ पे, वो चीज़ का आप स्टेप्स अपने आंसर पेपर पे भी लिख दो। क्योंकि अगर आप वो बाद में लास्ट में लिखोगे तो इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा शायद कि आप कौन सा स्टेप कब कर रहे हो करके। ओके, सो इन केस अगर आपको ये जो भी आपका स्टेप्स है उसका अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, सो जस्ट डीएम मी हाई एंड आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ फाइल ऑफ दिस थिंग, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, सो स्टेप नंबर 3 तक हम क्लियर है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे, दैट विल बी पासिंग द एंट्रीज। ओके, टू गो टू गेटवे ऑफ टैली अगेन यू विल बी प्रेसिंग एस्केप की, जो आपके कीबोर्ड पे टॉप लेफ्ट साइड पे होगा। ओके, तो एस्केप की दबा के वापस हम कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे, यहाँ पे। ओके, एंड देन फ्रॉम देयर विल गो टू अकाउंटिंग वाउचर्स। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू पास द ट्रांजेक्शंस नाउ, एंट्रीज हम पास करेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टेप नंबर 4। अब फर्स्ट एंट्री पे जाते हैं वापस से। फर्स्ट एंट्री का तारीख क्या है, 1-4-19। सो टू गिव अप्रोप्रिएट डेट यू विल प्रेस द शॉर्टकट की कॉल्ड एज F2, जो आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है शॉर्टकट की, यू कैन सी हियर। ओके, F2 दबाएंगे हम, यहाँ पे तारीख आएगा क्या, 1-4-19। ओके, यहाँ पे इसने पहले क्या बोला है, मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सो बेसिकली यहाँ पे मिस्टर रविंद्र कुमार ने कंपनी को पैसा दिया है, कंपनी ने उसका पैसा रिसीव किया है। तो जब पैसा रिसीव करते हैं ना, तो उसकी एंट्री हम पास करते हैं इनटू F6। F6 इज फॉर रिसिप्ट। आप यहाँ पे रिसिप्ट देख रहे हो। ओके, एंड देन F6 अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं रहता तो यहाँ पे भी लिखा हुआ रहेगा। ओके, जस्ट बिकॉज यू आर लास्ट मिनट लर्नर्स तो प्रॉब्ली ऐसा पॉसिबल है कि आपको शॉर्टकट कीज याद ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मांगा है उसने क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब CR का मतलब होता है क्रेडिट। ओके, तो क्रेडिट द गिवर, पैसा किसने दिया यहाँ पे, तो रविंद्र कुमार ने। तो यहाँ पे आएगा रविंद्र कुमार अकाउंट क्रेडिट। कितना पैसा दिया उसने, 5 लाख रुपीज। ओके, ऑटोमेटिकली आपका करंट बैलेंस यहाँ पे 5 लाख का बताएगा CR पे, दैट इज क्रेडिट। ओके, डेबिट, अब कंपनी को मिस्टर रविंद्र कुमार से क्या मिला, कैश मिला है, तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। ओके, ठीक है, फर्स्ट एंट्री इज डन। नाउ सेकंड एंट्री। अगेन सेकंड एंट्री की तारीख क्या है, 1/4/2019, तो हमें डेट चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, परचेज किया, राइट। तो परचेज के लिए हमारा शॉर्टकट की होगा F9। अगेन इफ यू डोंट रिमेंबर द शॉर्टकट कीज, आपके पास यहाँ पे भी शॉर्टकट कीज का टॉपिक रहेगा यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड कॉर्नर। ओके, सो प्रेस F9 की फॉर परचेज अकाउंट। एंटर दबाया, एंटर दबाया, यहाँ पे आएगा पार्टी अकाउंट, सॉरी, यहाँ पे आएगा पार्टी अकाउंट नेम। पार्टी अकाउंट नेम क्या है, शारदा स्टील्स। एंटर किया हमने, Ctrl+A। ओके, बिकॉज वो डिटेल्स हमारे पास नहीं है। ओके, पर्टिकुलर्स में आएगा क्या, तो परचेज अकाउंट। कितने का परचेज किया हमने यहाँ पे, 20,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे आएगा अमाउंट 20,000। ओके, एंटर किया एंड सेव कर दिया इसको हमने। थर्ड एंट्री, उसका तारीख क्या है, 2/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट को चेंज करेंगे। एंड एंट्री क्या है, पेड सैलरी टू स्टाफ। अब इसने ये नहीं बताया हमको कि कैश से पे किया है कि चेक से पे किया है, तो फिलहाल के लिए हम वी अज्यूम दैट इट इज पेड बाय कैश। ओके, सो यहाँ पे 2/5 पे पहले तारीख जाएगी और उसका एंट्री पास होगा। ठीक है, टू चेंज द डेट वी प्रेस F2 2-5। एंटर किया हमने, पेमेंट के लिए शॉर्टकट किया F5। ओके, अब जब हम F5 पे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है डेबिट, DR। नाउ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमारी कंपनी को खर्चा क्या हुआ, तो सैलरी एक्सपेंस का खर्चा हुआ। ठीक है, कितने का खर्चा हुआ, 5,000 रुपीज़ का। अब वो पेमेंट हमने कैसे किया, बाय कैश और बाय चेक। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको डिटेल्स नहीं दिया गया, तो वी आर अज्यूमिंग दैट द पेमेंट इज डन बाय कैश। ओके, एंटर एंटर सेव। ओके, फोर्थ एंट्री, वापस तारीख चेंज हुआ 1-6। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। अब जब भी आपको कैश टू बैंक की एंट्री हो या फिर बैंक टू कैश की एंट्री हो ना, तो वो एंट्री पास होती है हमेशा कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा का शॉर्टकट की क्या होगा, F4। ठीक है, तो जब भी आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करो या पैसा बैंक से विड्रॉ करो, उसका एंट्री आपको जाएगा कॉन्ट्रा में। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके बैंक को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, राइट। हमारे पास से क्या जाएगा बाहर, तो कैश जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। कितना अमाउंट हमने डिपॉजिट किया, हमने डिपॉजिट किया 50,000 रुपीज़। अच्छा, पहले तारीख चेंज करेंगे हम, F2 किया, डेट चेंज 1-6।
सॉरी, ठीक है। कितना पैसा हमने डिपॉजिट किया? ₹50,000। तो 50,000 हमारे पास से गया, और ये पैसा किसको मिला? तो डेबिट द रिसीवर। हु इज़ द रिसीवर? बैंक ऑफ इंडिया इज़ द रिसीवर। ओके। अब एंटर करेंगे, और फिर ये डिटेल्स को हम सिर्फ एंटर करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेशंस नहीं है ना, हमको ये नहीं पता 2000 की नोट कितनी थी, 1000 की नोट कितनी थी, 500 की नोट कितनी थी, हमें डिटेल्स नहीं पता, तो हम इसको सिर्फ एंटर की दबाएंगे। ओके, डन। नेक्स्ट एंट्री 26। यहाँ पे हमने क्या किया है? सोल्ड गुड्स टू राकेश एंटरप्राइज ऑन कैश। अब यहाँ पे हम चाहे तो दो एंट्रीज पास कर सकते हैं, या फिर हम सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम दो एंट्रीज वाला बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने सेल्स के लिए शॉर्टकट की क्या है यहाँ पे? F8। ओके, F8 के लिए हमने यहाँ पे प्रेस किया F8। ओके, तारीख हमने चेंज किया F2 2-6, एंटर दबाया हमने। अब पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे क्या आएगा? हमने माल किसको बेचा? तो वी हैव सोल्ड द गुड्स टू राकेश एंटरप्राइज। ओके, तो यहाँ पे हमने किया राकेश एंटरप्राइज, एंटर। ठीक है, कंट्रोल ए दबाया। यहाँ पे क्या आएगा? तो सेल्स अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट को एक्टिवेट किया। कितने का सेल्स किया हमने यहाँ पे? 25,500 का। एंटर दबाया, सेव कर दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हमारा है 2/7 का, तारीख वापस से चेंज हो गया। एंड वी हैव परचेज्ड अ मशीनरी विच इज असेट परचेज। अब इस पे भी हमको ये नहीं बताया कि पेमेंट हमने कैसे किया है, बाय कैश और बाय चेक। तो यहाँ पे भी अज्यूम दैट द पेमेंट इज डन बाय कैश। ओके, सो वापस यहाँ पे आते हैं, तारीख हमने चेंज किया F2 2-7। ओके, हम वापस कहाँ जाएंगे? पेमेंट पे F5। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और एल्स यू कैन से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि मशीनरी हमको मिलेगी, राइट? तो यहाँ पे आएगा मशीनरी एक्सपेंस, मशीनरी अकाउंट। कितने का मशीनरी खरीदा हमने? तो 10,000 का। ठीक है, क्रेडिट पे क्या आएगा? हमने मशीनरी कैसे खरीदा, बाय कैश और बाय चेक, तो यहाँ पे क्या आएगा? कैश अकाउंट। ठीक है, एंटर किया, सेव किया हमने उसको। एंड देन यू हैव लास्ट एंट्री विच इज अंडर डेट 2-12। वापस चेंज किया डेट 2-12। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया? इंटरेस्ट रिसीव किया ऑन कैश डिपॉजिट इन बैंक ऑफ इंडिया। अब हमने पैसा रिसीव किया बैंक के पास से, बट यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं बोला कि हमको कैश से पैसा रिसीव हुआ, राइट? तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री कॉन्ट्रा में पास नहीं करेंगे, विल पास द एंट्री अंडर रिसिप्ट F6। F6 पे गए, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हमारे लिए इनकम क्या हो गया? तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अवर इनकम। कितने का इंटरेस्ट रिसीव किया हमने? 2,000 रुपये का। किसके पास से रिसीव किया हमने? तो बैंक ऑफ इंडिया से। तो डेबिट द रिसीवर, वो अमाउंट भी जाएगा हमारे बैंक के अकाउंट में ही ना। ऐसा तो नहीं होगा कि हम वो इंटरेस्ट लेने के लिए बैंक में जाएंगे, बोलेंगे हमको कैश दे दो करके, राइट? सो ये कहाँ जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया पे। एंटर किया, सेव किया हमने इसको। बिकॉज वो डिटेल्स हमारे पास नहीं है, वो डिटेल्स फिल नहीं करेंगे। ठीक है, आफ्टर डूइंग ऑल द एंट्रीज, स्टेप नंबर 5, दैट इज व्हाट, कि आपको यहाँ पे बताना है क्या क्या चीज़। तो ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड डे बुक, ये आपको 4 रिपोर्ट्स बताने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रायल बैलेंस का स्टेप्स बताता हूँ। ठीक है, फॉर ट्रायल बैलेंस वी प्रेस एस्केप की, सॉरी, एस्केप की दबा के हम कहाँ जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली पे। ठीक है, टू लुक आफ्टर द ट्रायल बैलेंस वी गो टू गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, ट्रायल बैलेंस। ये आपका ट्रायल बैलेंस आ गया। अब ट्रायल बैलेंस ऑलवेज शोज यू द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, जो कि आपका क्लोजिंग बैलेंस बताएगा। ठीक है, अगर हम ऑल्ट F1 दबाते हैं यहाँ पे, तो हमको डिटेल व्यू देगा। डिटेल व्यू मतलब कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा लेजर आ रहा है, वो भी आपको बताएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू प्रिंट दिस प्रिंट दिस रिपोर्ट, तो आप प्रेस करोगे Alt+P। Alt+P एक शॉर्टकट की है, जिससे आप प्रिंट के ऊपर जा सकते हो, प्रिंट कमांड के ऊपर। अब प्रिंट करने से पहले आपको चाहिए प्रीव्यू, तो आपको यहाँ पे लिख के आएगा विथ प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, अगर आपको ये लिख के नहीं आ रहा है इन केस, तो आपको ऐसा कुछ आ रहा है, तो आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा विथ प्रीव्यू पे, तो आपको वहाँ पे वो चीज़ लिख के आ जाएगी। ओके, एंड देन यू प्रेस एंटर, तो आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। इफ यू वांट टू जूम दिस रिपोर्ट, यू विल प्रेस Alt+Z। ओके, ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट। अगेन वी गो टू गेटवे ऑफ टैली। ओके, अभी हमको क्या बोला उसने रिपोर्ट? तो P&L अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कहाँ जाएंगे? गेटवे ऑफ टैली से डायरेक्टली वी गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे। ठीक है, ये वाले पार्ट पे। और अगेन इसको ऑल्ट F1 दबाएंगे, तो वो डिटेल व्यू बताएगा, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। ओके, यहाँ पे हम वापस क्या करेंगे? Alt+P। अगेन यहाँ पे आना चाहिए विद प्रिंट प्रीव्यू, तो ये आपका प्रीव्यू दिखेगा, अदरवाइज आपको प्रीव्यू नहीं दिखेगा। इसको हमने प्रेस किया, एंटर की, एंड देन यू विल गेट दिस रिपोर्ट। ओके,
देन आपको बोला गया रिपोर्ट टू शो अबाउट बैलेंस शीट, राइट? तो बैलेंस शीट के लिए हम क्या करेंगे, वी गो टू बैलेंस शीट, एंटर की दबाया हमने, अगेन ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट भी दिख जाएगा, राइट? अगेन प्रिंट प्रीव्यू के लिए ऑल्ट पी दबाया हमने, ऑल्ट पी दबाया हमने, ऑल्ट पी दबाने के बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू पे जाएंगे, एंटर किया हमने, ओके? इफ यू वांट टू जूम द रिपोर्ट यू कैन जूम द रिपोर्ट, ओके? एंड देन लास्ट रिपोर्ट इज अबाउट डे बुक, राइट? तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से जाएंगे, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे गए, गेटवे ऑफ टैली से हम जाएंगे डिस्प्ले पे, ठीक है? डिस्प्ले से हम जाएंगे, डिस्प्ले से हम जाएंगे डे बुक पे, ठीक है? आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री दिख रही है, राइट? आपको यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट F2 1-4 एंड 2-12, एंटर दबा दिया हमने, तो आपकी जितनी भी एंट्रीज है वो सब आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, ओके? तो यहाँ से हमने किया वापस ऑल्ट पी, प्रिंट प्रीव्यू, एंटर किया हमने, आपको उसका प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा, ओके? ठीक है? सो ये आपका अलग अलग रिपोर्ट, जैसे ट्रायल बैलेंस का काम क्या होता है वो आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बताएगा। प्रॉफिट लॉस का काम क्या होता है कि आपको बताएगा आपकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि फिर लॉस कर रही है, ठीक है? बैलेंस शीट का काम क्या होगा, वो आपको बताएगा कि आपका असेट्स कितना है और लाइबिलिटीज कितना है। एंड डे बुक आपको बताएगा, डिस्प्ले में रिपोर्ट डे बुक के अंदर आपको ये बताएगा कि आपका वो पर्टिकुलर डे पे कितना रिकॉर्ड्स एंट्री पास हुआ है, ठीक है? तो ये चारों रिपोर्ट्स का ये काम होगा। ये आपका था स्टेप नंबर 5। इसके साथ आपका SOP नंबर 1 होता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भेजें जो है लास्ट मोमेंट लर्नर्स, जिनको ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच।